بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیت ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکت ہے۔ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے، اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں حضرت جابر رض اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری۔ بادل مشرق کی طرف چھڑ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے شیان و گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ رحمان رحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامہ پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامہ پر پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامہ پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور سے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارک ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے باب لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کا حامل۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھپ ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، جباہ کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، گرج ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائل و فوائد۔ ہم مشکل اور ہر حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے، ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم سے کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح 12,000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ توا لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہیں کر سکے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کی آفات و مسائل سے محفوظ رہے گا، چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔ ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے تو آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔
खेती की हिफाजत और बरकत के लिए 101 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का पर लिख कर खेत में मखसूस जगह दफन कर दे तो खेती तमाम आफा से महफूज रहेगी और उसमें बरकत होगी। जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हो वह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 61 मरतबा लिखकर तावीज़ बनाकर अपने पास रखे तो बच्चे महफूज रहेंगे। हुकाम से हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किसी कागज़ पर 500 मरतबा लिखे और उस पर 150 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर उस तावीज़ को अपने पास रखे तो हुकाम में मेहरबान हो जाएंगे और जालिम के शर से महफूज रहेगा। दर्द सर के लिए 21 मरतबा लिखकर दर्द वाले के गले में या सर पर बांध दे तो दर्द सर जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया व आखिरत के मसाइल से बचना चाहे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का कसरत से वर्दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज करते हैं, 10,000 गुनाह माफ हो जाते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नागनी, मौत और हर किस्म की आफत व बला से हिफाजत नसीब होगी। 35 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखकर घर में लटका दी जाए तो शैतान व जिन उस घर में दाखिल ना हो सकेंगे, बर ज़रूरत और मुश्किल के लिए बाद नमाज सुन्नत फजर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 90 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हमेशा वर्दे इंशा अल्लाह कोई मुश्किल पेश ना आएगी। जब भी ज़रूरत के वक्त पढ़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूअर फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो आप कभी भी माली परेशानी से दोचा नहीं होंगे। एक मरतबा एक सहाबी आए आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। यह बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाद है। तो कुछ साहब किराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुक़द्दर में नहीं होंगे तो वह चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वह हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ से हाथ रख कर बैठ जाएंगे। अब अल्लाह लाएगा, क्योंकि वह राजिक है, वह हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। आप पहले जाइए मजदूरी पर, आप काम पर जाएं, आप कारोबार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार है। सिर्फ हमारे कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया, बस कमा के ले आए। उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वह आटे की शक्ल में बना, फिर वह रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि यह हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वह गोश्त या सालन या सब्जी हमारे सामने आई। उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाया तो अब हमारी हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वह फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियां होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वह होती है जिससे रिज्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती है और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वह अंदर जाकर अलग हो जाती है। अब आप यह सोचकर देखिए कि फरिश्ता यहाँ पर बैठ बैठ कर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लकम पर कि मौला इस लुक्मे को जिंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बायस बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वह लुक्मा जिंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती तो वह लुक्मा मौत बन जाता है। यानी अगर वह लुक्मा बजाय खुराक वाली नाली में जाने के अगर वह सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखें कि हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उस नवारे को उस लुकमैल करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक ताला पर छोड़ दिया तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो?
अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मकर करो? एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई और उस पर लिखा, हाज मिन फजली रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रड करवाया। हमने इसकी बिल्डिंग फ्रड करके दी और ये लिख रहा है, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहाँ कहा था कि झूठ बोल के कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि लूट खसू करना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फराड़ा को बहका आता है? तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हो, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर जहां पर हराम काम कोई बंदा करता है, तो वहां पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दुनिया में छोड़ दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि यह तो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन याद रखना, यह अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छोड़ दी हुई है कि कर लो, दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है। ये मर्जी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो। देखें कितना करोगे, एक दिन आओगे, मेरे पास जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक या मद्दीन इंसाफ के दिन का हाकिम तो अल्लाह है, और हमें यह समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशा अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।